unit testing. What are the levels? What are the levels of testing? Levels of testing. Unit testing, integration testing, and system testing. Unit testing, integration testing, system And testing, and acceptance testings. Okay, that is UAT. okay. UAT. Sometimes the interviewer always use the short words. Okay, that is UAT. User acceptance testing. Okay. That is also the acceptance testing. What are the types of acceptance testing? Types of the acceptance testing. Who will do the acceptance testing? Who will involve? User. Developer and tester can't do? No, on means end user or client will do. And there are two types of testing and acceptance testing: alpha testing and beta testing. Okay. Alpha testing, customer and developer will involve, but in beta only customer involved, means only customer do this. Okay, in alpha testing? अल्फा टेस्टिंग में कस्टमर रह सकता है या फिर कस्टमर के साथ डेवलपर भी रह सकता है. Okay, so the acceptance testing is done by the tester, developer, and user. Okay, but alpha testing done is the developer level along with the developer or tester. Okay, so the customer means customer or potential user or client that do the testing at the developer side along with the developer and testers. Okay, so it can be done before the beta testing. Beta is only involve the end user. Okay, then what are the types of the testing types? Okay, what are the what are the testing techniques? Testing technique, static, dynamic. Two Okay, types of technique. there are two types of the techniques. First is static and dynamic. Static techniques में क्या इन्वॉल्व होता है, क्या क्या रहता है? स्टैटिक टेक्निक में हम कोड रिव्यू करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे एंड वॉक थ्रू करेंगे. Okay, that is documentation only. Okay, only documentation. Yes, means application. So that is what go through of the documentation. All this FRS, SRS. Okay, all this documentation, code review. Okay, just reviews. And dynamic testing? डायनामिक टेस्टिंग्स में हमारे मेन टेस्टिंग्स आएंगे, मींस ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स. Yes. So what are the functional testings and what are the non-functional testing? What are the functional testing? फंक्शनल, हाँ, फंक्शनल में SSRR मींस स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग. And non-functional testing? नॉन फंक्शनल में परफॉर्मेंस आएगा, सिक्योरिटी, कंपैटिबिलिटी एंड यूजेबिलिटी. Okay. After that, we have seen what is smoke testing, what is sanity testing, okay, and regression testing. Okay, also retesting, regression testing, smoke sanity, retesting, and regression testing. Okay, so when we go for the smoke testing, it's just build verification, nothing but integration testing. मीन्स डीपली हम टेस्ट नहीं करेंगे, जस्ट ओवरव्यू रहेगा. टेस्ट में फंक्शनैलिटी रहेगा, फंक्शनैलिटी जो है एप्लीकेशन की वो overview. okay, so once we get the build, okay, how to explain? Once we get the build from the developer initial stage. So once we get the build in the initial stage, so we are going to do the build verification. That is also known as the integration testing.
Smoke testing is also known as the integration testing or build verification. So in that smoke testing, we are going to check whether all these links are working properly or not. Okay. So this is what smoke or build verification or integration testing, and that is for what initial stage. So we are not going to touch all this area. Okay, with deeply, we are not going to go for the deeply, right? So once the smoke testing is fails, means the build verification is fails, then what will happen? बिल्ड वेरिफिकेशन फेल हुआ तो हम रीटेस्टिंग करेंगे. Okay, that is not a retesting. Okay, see here, once we get the build. Okay, so now I am going to share the screen and I am going to explain from here. Okay, यहाँ से मैं और explain करना चालू कर देता हूँ, right? So because these are the very important. So smoke testing, retesting, regression testing, everything we have to do in the cycle. Okay, daily we have to do for sanity, retesting and regression. Sanity, retesting and regression, this is what continue process. Okay, this is continue process. One second, on Google Meet. Okay, so once we get the build from the developer, okay, so also the smoke testing is done by the developer, also the tester. Okay, smoke testing, build verification. So consider the we have the build. Okay, screen is not shared. It's Visible. Okay, so once we get the build from the dev environment, developer environment, also this is consider this is the version 1. Okay, version 1. So this is the first build. Build means software. Okay, so this is build 1, version 1. So now developer will also do the smoke or build verification or integration testing. Okay, developer is also do before sending the QA environment. Okay, before sending the QA environment, QA team. So this smoke testing is also done by the developer. Then again we got here as a QA team. Okay, so we also go for the build verification testing. Okay, that is what स्मोक टेस्टिंग. हम भी स्मोक टेस्टिंग करेंगे. जैसे हमारे पास बिल्ड डेवलपर जब इनिशियल स्टेज पे बिल्ड डेवलप कर दिया है, इनिशियल वर्जन 1 है, उसके बाद वो डेवलपर क्यूए टीम को सेंड करने के पहले बिल्ड दे विल आल्सो वर्क ऑन दैट बिल्ड. ओके, दे विल आल्सो डू द स्मोक टेस्टिंग और बिल्ड वेरिफिकेशन और इंटीग्रेशन टेस्टिंग. Okay, before sending the QA team. Then after that it is okay for the developer, then we will get the QA team. So QA team again will do the build verification testing. That is what smoke testing. This is the first stage. Okay, the first stage of the testing is the smoke testing. Okay, so all these links are working properly or not, that is build verification or nothing but the integration testing. Okay, so once the build verification or build smoke testing is fails. Okay, once the small that is rejected by the QA, so again the developer will work on that and the next build will come with the new features. Okay, bug fixes as well as new features. Okay, new features भी add होंगे as per the requirement. So this is what version 2 now, 2.0. Okay, so it's having the bugs fixes with new features. Again we go for what, smoke testing. Okay, now we will do the build verification testing until we get the relatively stable build. Okay, relatively stable build, जब तक हमको relatively stable build नहीं मिलता है, then up to there we are going to here build verification. Okay, means the smoke testing. Once we get the relatively stable build, we stop the build verification. Relatively stable. Okay, थोड़ा बहुत stability आ गई है build में. Then we go for the sanity testing. Okay, sanity testing. So we are going to verify all the bug fixes in the previous build and having the new features also. Because once we get the build, so he having the some 2-3 features. Okay, then in that features I got the some defects. So it will, the next build will release with the fixing the defects as well as adding the some new functionality or new requirement. Okay, so requirement in the user story, you can say the user story in the agile mode process. Okay, so what is agile and everything we will
सी डोंट वरी अबाउट दिस वन, ओके, जस्ट यू अंडरस्टैंड वन बिल्ड आ गया, बिल्ड बिल्ड आ गया, फेल हो गया, उसके बाद और उसको वेरीफाई कर दिया, उसमें न्यू फीचर्स ऐड करने के बाद हमारे पास दूसरा बिल्ड आया, तो उसमें क्या है कि जो बल्ड बग फिक्सेस भी आ गया और न्यू एडिशनल फीचर्स भी आ गया, डेवलपर ने और उसमें एडिशनल कोड करके भेजा है, ठीक है। सो नाउ कंसिडर द बिल्ड इज रिलेटिवली स्टेबल, अभी थोड़ा सा स्टेबल है बिल्ड, देन वी कैन गो फॉर द अदर टेस्टिंग, दैट इज व्हाट, then we go for the sanity testing and then functional regression, whatever the testing you are going to do, okay. So the sanity testing means sometimes in the sanity testing also the build get rejected, okay. Sanity testing means functionality testing, basic functionality, okay, in high level we are going to check the functionality but in the high level, okay, basic functionality we are going to check here, okay, all these bug fixes are not and it should not be impact, okay, means so that is regression. हाँ, मैं वही पूछने वाली थी अभी कि सैनिटी टेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग थोड़ा सेम ही लग रहा है, नहीं, डिफरेंस क्या है? sanity testing is the part of regression testing, okay, it's a subset of the regression testing, okay. अच्छा, Sanity testing is a subset of regression testing, is a part of regression testing because we are going to check the bug fixes also, whenever there is a bug fixes that is a part of regression, हम्म, also we are checking the functionality, okay. So sanity testing is the part of regression testing, it's a subset of the regression testing, ऐसे बोलना है आपको। सो अगर कभी कभी सैनिटी टेस्टिंग में भी बिल्ड फेल होता है देन द न्यू बिल्ड विल कम विथ हैविंग द एडिशनल फीचर, सो हियर द सैनिटी टेस्टिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट एवर द वी हैव रिपोर्टेड द defects, so we have to verify that one and here the new features is get added here, so now we are not going to check the new features, okay. So for that purpose we have to go for the other testing, that is what regression testing, retesting, regression testing, other kind of the testing, ओके. सो हियर द सैनिटी टेस्टिंग जैसे चालू हो गई है और वो स्टेबल बिल्ड हो गया है देन वी कैन गो फॉर द अदर्स टेस्टिंग। और डिफरेंस क्या है स्मोक टेस्टिंग और सैनिटी टेस्टिंग में, स्मोक टेस्टिंग डेवलपर और टेस्टर करता है, सैनिटी टेस्टिंग ओनली टेस्टर करते हैं, ठीक है। स्मोक टेस्टिंग में डेवलपर भी इन्वॉल्व होता है, टेस्टर भी करते हैं। बिफोर सेंडिंग द क्यूए टीम डेवलपर आल्सो डू द स्मोक टेस्टिंग इन द वन बिल्ड, ठीक है, पहले बिल्ड में वर्क करेगा, सारे बिल्ड में करेगा वो टेस्टिंग, और जब एज कंपेयर टू द now we consider the sanity testing only the tester will be involved, that is very very important. So क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, ओके, आपको कंफ्यूज करेंगे स्मोक टेस्टिंग सैनिटी टेस्टिंग में, याद ऐसा रखना है कि ओनली टेस्टर इन्वॉल्व द सैनिटी टेस्टिंग एंड स्मोक टेस्टिंग डेवलपर आल्सो एंड टेस्टर आल्सो डू, ठीक है। टेस्टर कब करेगा स्मोक टेस्टिंग, बिल्ड भेजने के पहले क्यूए टीम को, ओके। और जैसे क्यूए टीम को बिल्ड मिलता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सॉरी क्वेश्चन रिपीट करना। ओके। सो वंस वी गेट द क्यूए टीम, जैसे सबसे पहले अगर क्यूए टीम को बिल्ड मिलता है तो क्या होता है, कौन सी टेस्टिंग करते क्यूए टीम, क्यूए टीम सब, स्मोक टेस्टिंग हाँ, करेगी, यस, बिल्ड वेरिफिकेशन। बिल्ड वेरिफिकेशन सबसे पहले, ओके, जब तक रिलेटिवली स्टेबल नहीं होता है बिल्ड तब तक, और मान लीजिए कि अभी थोड़ा बहुत स्टेबल हो गया है देन वी कैन गो फॉर द सैनिटी टेस्टिंग एंड अदर काइंड ऑफ टेस्टिंग। मतलब सैनिटी टेस्टिंग रिग्रेशन टेस्टिंग का पार्ट है, यस राइट? यस यस, वी कैन से ही इज अ सबसेट ऑफ द रिग्रेशन टेस्टिंग, सबसेट बोलो या फिर सैनिटी टेस्टिंग इज द पार्ट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग, ओके। इफ यू डू यू वांट टू सी इन द गूगल, ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल शो यू इन द गूगल आल्सो सैनिटी। लेकिन दोनों का भी डेफिनेशन सेम ही आ रहा है नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सैनिटी एंड रिग्रेशन, because impacted area we are not going to check in the sanity testing, in regression testing we are going to check the impacted area where it is impacted. मतलब सैनिटी टेस्टिंग में हम सिर्फ चेक करेंगे कि अदर फंक्शनैलिटी पे इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं, नहीं, लेकिन सैनिटी टेस्टिंग में वो नहीं चेक करेंगे, वो रिग्रेशन में चेक करेंगे। सैनिटी में क्या करेंगे फिर? सैनिटी, सैनिटी में अभी बताया ना मैंने, बग फिक्सेस एंड न्यू फंक्शनलिटी जो ऐड हो गया है, द स्मॉल बेसिक फंक्शनलिटी वी आर गोइंग टू चेक, बेसिक फंक्शनलिटी, you can check here the sanity testing is a part of regression testing, yes, okay, we can say the subset of the subset of the regression testing, और ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ द टेस्टिंग रिग्रेशन वगैरह सैनिटी टेस्टिंग की बात करते हैं, द फर्स्ट इज अ स्मोक देन सैनिटी, दिस इज व्हाट यूनिवर्सल, ओके, एवरीथिंग इज यूनिवर्सल।
सो सैनिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं, वेरीफाई द बग फिक्सेस एज वेल एज द बेसिक फंक्शनैलिटी इन हाई लेवल। थोड़ा हम लेवल बढ़ा लेते हैं, स्मोक टेस्टिंग में सिर्फ हम लिंक वगैरह ऐसे थोड़े बहुत चेक कर लिए, बट सैनिटी टेस्टिंग में फंक्शनैलिटी चेक करते हैं, बट इन द हाई लेवल, small small functionality, that's it. Okay, now next one is what, regression testing. Okay, so regression testing means what, we are going to check the bug is fixed or not, and that should not be impacted in the existing functionality of the application. So there are the types of the regression testing. Okay, that is involved with unit regression, और कौन सा है, यूनिट, रीजनल एंड फुल रिग्रेशन। अब regression. ये देखो, यूनिट रिग्रेशन कब करेंगे, और फुल रिग्रेशन और रीजनल कब करेंगे। Okay, so consider we have the one application, that is what, open card application, suppose. Okay, so here there is a login module. After the login you will get the home page. Okay, consider this one. Okay, JioMart. Okay, so signing and everything. So now we are going to check here. First of all, firstly हम login करते हैं, या फिर नहीं भी करते, एक प्रोडक्ट हमने किया, so that is one module. Okay, user registration something, then buy the project, product, and then फाइनेंस, इन द फाइनेंस में हमको क्या पड़ता है, पेमेंट गेटवे करना पड़ता है। ठीक है, सो ये यूज़र है, देन पिक अप द प्रोडक्ट एंड डू द फाइनेंस। ओके, एंड देन चेकआउट। ठीक है, सो ये 4 मॉड्यूल्स है। ओके, वी हैव द बग इन द यूज़र मॉड्यूल। If you have the bug in the user module, you reported the bug to the Jira. Okay, with user module there is a bug. Okay, so we'll track that one, whether the bug is fixed by the developer or not, we are going to track. And once the developer is fixed that bug, okay, so we are going to do here what, retesting. Okay, re-executing the same test case, whether to check whether the bug is fixed or not. And we are going to check the impact of this bug fixes in the other area. In the other area means in this module, that is known as unit regression testing. Okay, because whenever the developer bug fixes, so we'll get the bug with the adding of the requirement or code. जब भी डेवलपर बिल्ड फिक्स करता है, साथ ही साथ वो उसका जो कनेक्शन है उसके साथ, ओके, जैसे यूजर का कनेक्शन है परचेस के बाद, यहाँ पे आता है कि प्रोडक्ट बाय पे, ओके, देयर इज आल्सो इंटीग्रेटेड। Okay, so the developer also do the some code changes here. Okay, and developer is also do the code changes here. Okay, we do the testing here, that is regression testing. We are checking here the whether the bug is fixed or not, and that should not be impact in the existing functionality of the applications. Okay, that is in the one module, single module, that is known as regression testing. If the developer is changes the code in other modules also, this module and this module also, this is what, purchase module. Okay, this is what, payment module, finance module. So code is changes here, that is impacted in the other area. So we have to do the, when the bug is fixes, so we have to check in this module, we have to check impact in this module, that is known as regional regression testing. Okay, this is what, regional regression testing. When the bug is reported and the developer is fixed the bug, and we are checking the impact of the all these modules of the application, that is known as what, full regression. Okay, full regression testing. जो भी बग का इम्पैक्ट हो रहा है, इस पे अटैच है, इस पे अटैच है, इधर कोड में चेंज किया तो इधर भी कोड में चेंज करना पड़ेगा, इधर कोड में चेंज किया तो इधर भी कोड में चेंज करना पड़ेगा, इधर भी चेंज करना पड़ेगा, दैट इज डिपेंडेंट. So all these, when the bug is fixed, that is depend impacting on the all these modules, that is what we need to go for, to check the bug is fixed or not, and we are going to check whether it is impacted on the other functionality, entire applications. Okay, entire the modules, that is what regression kind of testing. जो यहाँ पे बग फिक्स किया उसका इम्पैक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, दैट इज व्हाट फुल रिग्रेशन टेस्टिंग. दो और मोर मॉड्यूल पे आप चेक कर रहे हो, दैट इज रीजनल, एंड एक ही विद इन द मॉड्यूल पे चेक कर रहे हो उसका इम्पैक्ट, दैट इज व्हाट यूनिट रिग्रेशन टेस्टिंग. यस, अभी इसमें डाउट है क्या, रिग्रेशन में मोस्टली आज क्वेश्चन है 100%, 100%.
क्लियर है? जब भी बिल्ड आता है, बिल्ड हमेशा आपको बिल्ड आता है तो बग फिक्सेस के साथ आएगा एज वेल एज रिक्वायरमेंट के साथ आएगा। बिकॉज वो सिर्फ डेवलपर यही करते नहीं बैठेंगे, आपको बग फिक्स करेंगे और वापस देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बिकॉज दे आर गोइंग टू कोड विद द एज पर द रिक्वायरमेंट, दे दूसरे रिक्वायरमेंट पे भी वर्क करते हैं। आज लॉगिन का मॉड्यूल दिया है तो नया, और लॉगिन में अगर आपने बग दिया है, डिफेक्ट इशू किया है, तो जो दूसरा मॉड्यूल आएगा, मॉड्यूल रजिस्ट्रेशन के साथ लॉगिन भी आएंगे और रजिस्ट्रेशन भी आएंगा, दोनों मॉड्यूल आएंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले रीटेस्टिंग करेंगे, उसके बाद रिग्रेशन करेंगे, यूनिट रिग्रेशन करेंगे लॉगिन में ही। ओके, और उसका जो इम्पैक्ट है साइन अप पे, रजिस्ट्रेशन पे, वो दो मॉड्यूल पे करेंगे, दैट इज नोन एज रीजनल रिग्रेशन टेस्टिंग। और सारे एंटायर एप्लीकेशन पे उसका इम्पैक्ट चेक करना है, दैट इज full regression testing. So we always do the sanity testing, retesting and regression testing continuously, because continuously we'll get the build, that is build bug fixes as well as having the addition of the new functionality, new requirement. And in the agile the requirement is as known as user story. ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूजर स्टोरी। सो इसको कैसे एक्सप्लेन करना है मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी, बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज अ पॉइंट ऑफ interviews. Okay, sanity testing, smoke testing. Okay, next one is usability testing. Okay, usability means whether the application is user friendly or not. So in the usability testing, what we are going to do, tabbing index. Okay, so tabbing index, tap. So what we are going to check, keyboards. Okay, up and down, कीबोर्ड की बटन देखो अप एंड डाउन वर्क कर रही है क्या प्रॉपरली, यूजर फ्रेंडली है क्या, नहीं तो वर्क कर रही है, मेरे कीबोर्ड की बटन जो अप एंड डाउन वर्क कर रही है। देन माउस फंक्शंस प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। ओके, माउस फंक्शन, mouse function is working properly, that is known as user friendly. Okay, it's a user friendly. So usability testing. Okay, can check here what spelling mistake, grammatical mistakes also, that is also comes under. Okay, usability. Then GUI testing, graphical user interface, button, text color, font color, okay, background color, foreground color, etc etc, right, look and feel of the application. Then functional testing means retesting. So if you report one bug and the bug is fixed by the developer and same bug fix or not, we are going to check, that is what retesting. So reproduce the same test case to verify the whether the bug has been fixed or not, same test case दोबारा रन करेंगे वही। okay, sanity testing is the part of regression testing. okay, and the regression testing is what, we are going to bug fix हुआ कि नहीं और उसका impact क्या है रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन पे, वो चेक करना है, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड रहते हैं एक में के ऊपर। ओके, सो हमको उसका जो इम्पैक्ट है, जहाँ पे बग आया वहाँ पे बिग बग फिक्स किया, डेवलपर ने उसमें कोड चेंज कर दिया, उसका इम्पैक्ट दूसरे मॉड्यूल पे हो रहा है, वो भी हमको चेक करना है, राइट। सो इट इज डिवाइड इन द थ्री टेस्टिंग। ओके, यूनिट रिग्रेशन मीन्स विद इन द मॉड्यूल, रीजनल मतलब दो और मोर मॉड्यूल के ऊपर टेस्ट करना, और फुल रिग्रेशन मतलब एंटायर एप्लीकेशन। ओके, एंड व्हाट रिक्वायरमेंट इज आल्सो गेट चेंज, हमेशा रिक्वायरमेंट नया बिल्ड आएगा तो रिक्वायरमेंट चेंज आएगा। तो सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, डेटाबेस टेस्टिंग। द लास्ट क्लास आई हैव आल्सो एक्सप्लेन द डेटाबेस टेस्टिंग। So there are in the testing also there are the expert testers, system tester, okay, database tester, ETL tester, API tester. Okay, there are the some क्या बोलते हैं specialization in the testing. Okay, some the tester having the manual testing team, automation testing team, also there will be the database testing. Okay, so एक एक expert रहते हैं। Security testing में those who have the security related certification, cyber security, Linux, Unix certification, okay, so that they will do the security testing in the high level. And apart from this one, we can also do the security testing in low level. Just we are going to verifying what username, password, whether it is the password is visible in the page source or not. Okay, so we are checking that should not be visible the password in the page source, right? So this is the simple we are going to do this one. But the expert level, we have the different kind of experts. So now database tester is the different things. Okay, so whenever we are entering the any password here, that should not be visible. So basic level of testing is this is what basic level of testing, security level. But the higher security level, having the certification testers also there. Okay,
सो यूनिक्स लाइनक्स वगैरह सर्टिफिकेशन रहते हैं, सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड रहते हैं, वो सब रहते हैं, ठीक है। तो हम जो डेटाबेस टेस्टर है ये भी एक्सपर्ट रहता है डेटाबेस टेस्टिंग में, दैट इज ओनली टेस्ट द डेटा। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ एरर दैट कैन बी ऑकर इन द databases, okay, means in data integrity and output error. So missing or the wrong data in the table. So you know the database management system, okay. So database दो टाइप्स, ओके, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो डेटाबेस तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया था टू स्टोर द डेटा टू द वन ऑफ द काइंड ऑफ एनी स्टोरेज एरिया दैट इज नोन एज द डेटाबेस। एंड डेटाबेस इन द previously that having what Excel, okay, Excel or files, MS Excel files, and now the MS Access, but there will be the no relation between the other table. There is a one table and there is another table, but we don't have the relation between that table, so that's why it's not used. So now the new database concept come with the EF code, okay, it's the name of scientist. So he has designed what RDBMS, relational database management system, okay. RDBMS means which shows the relation between the two data tables, okay. So there is what database, and that database contains the tables, and tables contains the data that is known as record, okay, उसको हम बोलते हैं record, okay. So suppose there is a user table in the open cart, okay, user table, user consists of the username, password, users details, and the next table is having the purchase table, okay. So user का यहाँ पे आईडी है वो, और उसके परचेस डिटेल है, दैट मीन्स वी हैव द रिलेशन बिटवीन द दिस टू टेबल, बिकॉज बट दिस इज द सेपरेट टेबल्स, ओके, जो भी है वो सेपरेट टेबल्स है। शो databases, okay, so use here, we use one of the database, suppose I'm using AMP, so show tables, okay, only one table, so I want to view the record from this table from EMP, okay. So this is what the data in the tables, okay. So this type of query, it's known as the SQL, to retrieve, to see, to create, to update, to delete, okay. CRUD operation, that is perform what CRUD operation, it's a basic concept. CRUD, C means create, R means retry or read, U means update, and D means delete, okay. So this will take care of database, your administrator, database administrator will take care of this one, okay. And what the database tester will do, they will do to test here the tables data, okay. This is one table, all the record means the data is inserted properly in the column field, okay. That will everything will be checked. Sometimes we enter the table registration, okay, we'll do the registration, we'll get the username password, and you are entering the username password, it will get fail, okay. That may be the problem of database, right? So in the database testing, they will do what? Whether this registration successfully enter, means the data all enter in the tables in the proper table or not. Okay, that is going to be checked. So that is everything will done by the database tester. Okay, so output error means sometimes error is writing, reading, or reading the operations in the table. So जो भी, that is a part of the DB administrator, and he is maintaining the all the database, use the database, and we as a database tester, okay. So ये भी experienced candidate को ही work देते हैं as a database tester, because there is one say also as a part in the testing, API testing, database testing, ETL testing, okay. So we have to just know the basic knowledge of the database, okay, select, update, query. So that is what just the basic knowledge of the database you should have to know. So once we get the project, okay, so you can check here the project management plan, okay. So here the developer team is also do here what database design, okay. Simultaneously UI development, UML diagrams also design, okay. Database design is also available there. So the database administrator work on that one, okay. And we are going to just test only the from the end user, from the end user data is storing properly into database or not, all the retrieving operation performing properly or not. That is what database testing,
Okay, next is the compatibility testing. Compatibility testing. So what is the compatibility testing? Whether the application is compatible in the hardware and software or not. Okay, we are going to check. So compatibility, for example, browser. We are using the multiple browser. Okay, so this is Chrome. The same URI, URL is working. Okay, with showing this one. If I use here the Edge browser. Okay, if you are getting the same thing with same UI, ऐसा नहीं कि क्रोम में थोड़ा यूआई ऊपर नीचे दिख रहा है और इसमें अलग लग रहा है, क्रोम में अलग लग रहा है और मोजिला फायरफॉक्स में अलग लग रहा है. ओके, दिस इज व्हाट ब्राउजर कंपेटिबिलिटी टेस्ट. ब्राउजर कंपेटिबिलिटी. अभी आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस इन द मैनुअल टेस्टिंग. ओके, ये 100% आज क्वेश्चन रहता है इन मैनेजर राउंड. क्या चैलेंजेस फेस किए, तो यू कैन से द ब्राउजर कंपेटिबिलिटी इशू. समटाइम्स आई फेस विद द ब्राउजर कंपेटिबिलिटी इशू. तो इस ब्राउज़र पे वर्क कर रहा है प्रॉपरली और शो कर रहा है, लेकिन दूसरे ब्राउज़र पे कुछ फीचर्स प्रॉपर व्यू नहीं कर रहे हैं. ओके, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू चेक हियर. कंपेटिबिलिटी, ब्राउज़र कंपेटिबल है कि नहीं एप्लीकेशन. देन प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी, वेदर इट इज़ वर्किंग इन यूनिक्स मीन्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, हार्डवेयर compatibility, software requirement, right, on the different hardware and software environment. Environment means what? We are going to do the setup to execute our build. Okay, to execute our build, suppose consider I have the one build in my Eclipse. Okay, so these are the some builds are there. Okay, so in the build means in the project there are the some builds. Okay, so the for to run this build what we required, softwares required. Okay, I required a Java because my build comes with the Java. Okay, that is coding language is the Java. Then JDK is required. Then Eclipse IDE required, integrated development environment. Okay, so these are the necessary things that I required. That is in the QA environment. Okay, once we get the build, we have to download the build in your local system. लोकल सिस्टम में हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि हमारा वो सिस्टम ही है. ओके, देन वी आर गोइंग टू चेक विद द सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट. अगर आपका जावा में बिल्ड है तो आपको जेडीके इंस्टॉल करना है. वो आपको मेंशन करके रहेंगे कि कौन सा वर्जन एंटर करना है जेडीके का. सब आपको स्क्रिप्टेड रहेगा. देन आपको इक्लिप्स का कौन सा वर्जन यूज़ करना है, वो इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको बिल्ड वहाँ पे डिप्लॉय करना है लोकल एनवायरनमेंट में क्यूए के हमारे. ठीक है, फिर वहाँ पे हम उसमें वर्क करते हैं. देन अगर हमको डिफेक्ट आता है फिर हम जीरा में रिपोर्ट करते हैं और 7 दिन के बाद हमारे पास बग फिक्सेस और एडिशनल फीचर्स वाला और बिल्ड आ जाएगा. दैट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस. ओके, और हम उसको इंस्टॉल करेंगे और हम क्यूए एनवायरनमेंट में हम टेस्ट करेंगे. ओके, सो डेवलपर इज वर्किंग ऑन दैट एनवायरनमेंट, दैट इज नोन एज dev environment. Tester is working on the environment that is known as QA environment. Both you are using the same softwares. Okay, so we are going to check the compatibility. Sometimes we are facing the issue in our system, but developer is rejected by the defect. Okay, this is the mostly asked question. What will be happen if the developer will get rejected your defect? Sometimes developer reject karte. Why? Because you are working in the Windows in your system and you found a defect in your system, but this defect is not impacting the dev environment. ठीक है, अदर सिस्टम में वो डिफेक्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ आपको चाह रहा. ओके, सिर्फ आपको डिफेक्ट आया, आपने डिफेक्ट रेज किया है. ओके, और डेवलपमेंट में जब उस डेवलपर ने टेस्ट किया वहाँ पे वो डिफेक्ट, वो ऐसा कुछ डिफेक्ट ही नहीं है. सो इट इज रिजेक्टेड बाय द डेवलपर. क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे? क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बताइए. दिस इज मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन. व्हाट विल बी हैपन इफ डेवलपर रिजेक्टेड बाय योर डिफेक्ट? यस,
अंकिता, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? डेवलपर टेस्टर ने रेस किया डिफेक्ट, डेवलपर ने उसको रिजेक्ट किया, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? ऐसा कब हो सकता है? So there may be the compatibility issues, okay, environment issues, browser compatibility issues, or sometimes the developer is working in the another version of the build and you are is working on the another version of the build, okay, right? Then next issue is what? Okay, yes. So the next issue is what? This is the defect in your system only, because okay, in your system. This defect is occurring in your system, is not occurring in the other system. So once you get the defect, we have to do the same defect, okay, we have to do the 2 more times. एक ही बार आपको डिफेक्ट मिल गया और खुश हो गए, वाह 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 वाह, डिफेक्ट मिल गया, डिफेक्ट मिल गया, okay, don't do like this way. We have to do 1 more time, 2 more time, okay. Also we'll check the with different environment, we can check with the different environment. So same you are getting the build, so same you are getting the defect, then you can report the defect. So then developer is accepted, then we can say this is the bug. Okay, what is the difference between defect, bug, error? बहुत confusing area है. Error क्या है, defect क्या है, issue क्या है और bug क्या है. So ये मैं बताऊंगा आपको, don't worry. ठीक है. Developer is get accepted, that means a bug. Okay, your issue is accepted by the developer, that means the bug. And if you found any issue, that is a defect. And developer is write the code and he has mistake in the, he did a mistake in the code, there is an error. This is known as error. That is very important terms in the testing field. Okay, error, what is error, what is defect, and what is bug. Don't say immediately I found a bug. Okay, say defect only, defect and issue. Don't say immediately bug. Okay, only defect, say defect, defect and issue, defect and issue. Okay, इतना ही बोलना है. When the developer is get accepted the defect, then it is the bug. Okay, because developer get accepted and rejected, there are the two possibilities there, you know, the bugs life cycle, we'll see, don't worry about that one. So here compatibility issue, so दूसरे environment भी check करो, अगर उसमें भी same issue आ रहा है तो हम उसको report करेंगे. Now the developer ने reject किया, ओके. सो हमको पता चला कि हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा इशू है, डेवलपर के एनवायरनमेंट में ऐसा इशू नहीं हो सकता, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डेवलपर इज वर्किंग इन द डिफरेंट बिल्ड एंड यू आर वर्किंग इन द डिफरेंट बिल्ड, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. ऑल्सो द कंपेटिबिलिटी इशू हो सकता है कि आपको जो सॉफ्टवेयर बताया गया था, रिक्वायरमेंट ये थी, और आप दूसरे सॉफ्टवेयर में उसको वर्क कर रहे हैं, इसीलिए वो बिल्ड आ रहा है, सॉरी डिफेक्ट आ रहा है. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, आपको नेटबिन का वर्जन 8.5 बोला था और आपके 9 वर्जन यूज कर रहे हो. ठीक है. सो environment setup issues, okay, that is what environment setup issues. So the test the application on the different operating systems such as Windows, all version, Linux and Unix. So compatibility testing is as per the hardware and software requirement environment. Okay, versions proper होने चाहिए. आपको बोला Eclipse यूज करो तो आपने Eclipse यूज किया बट उसमें दूसरा वर्जन यूज किया. ओके, सो स्पेसिफाइड वर्जन में ही करना चाहिए. ठीक है, जो रिक्वायरमेंट हो, दैट इज व्हाट कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग. वी वांट टू चेक दिस एप्लीकेशन. फिर आप बोलेंगे कि मेरे तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, फिर मुझे डिफरेंट एनवायरनमेंट कंपनी कैसे देंगी चेक करने के लिए, लाइक ये लिनक्स एंड यूनिक्स. सो दे कैन कनेक्ट योर सिस्टम, ओके, दे विल प्रोवाइड योर वर्चुअल एनवायरनमेंट. ठीक है, तो आपका जो कंपनी का लैपटॉप है उसमें आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके देंगे वो कंपनी. डोंट वरी फॉर दिस वन. ओके, everything will be done by the company, don't worry. First of all they will give you the KT, that is very important. So आप 5 साल के रहो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, 15 साल का एक्सपीरियंस हो, they must have to provide you KT, okay, knowledge transfer. ठीक है, so KT आपको दिया जाएगा, don't worry. So the test the web application in the different browsers also such as Internet Explorer, Firefox, Netscape, Navigator and Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome. ठीक है. So now, right now, the Internet Explorer is retired. ठीक है, Internet Explorer is retired and now is the कौन सा है फिर?
इंटरनेट एक्सप्लोरर रिटायर हो गया तो अभी कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा दिया हमको ब्राउज़र? एज, ओके? इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी कौन सा दिया है? एज। That is not available nowadays, okay? Windows for 95 years and something no longer accessible now. And we have here Edge, okay? तो हमको अभी Edge दिया है तो इसलिए ये यूज नहीं होता है Microsoft Edge. So we use all this browser compatibility software. So this is compatibility testing is done, okay? तो ये भी हमको टेस्टिंग करनी पड़ती है, इनिशियल स्टेज पे भी करनी पड़ती है और ओवरऑल, ओके? सो द कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग किसके अंडर में आती है? Yes, compatibility testing is the part of which testing? Compatibility testing is the part of which testing? System testing. Yes, system testing का part है ये, हाँ सिस्टम टेस्टिंग है ना? नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में भी आता है। यस, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है ये, क्योंकि हम फंक्शनलिटी थोड़ी ना चेक कर रहे हैं, हम उसको वर्क कर रहे कि नहीं, डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन, क्योंकि कोई मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेगा, कोई मोबाइल पे गूगल क्रोम यूज़ करेगा, कोई कुछ यूज़ करेगा, हर जगह पे हमारी एप्लीकेशन ओपन होनी चाहिए. That is what browser compatibility, software compatibility. Hardware compatibility means the minimum hardware that required to use this one. Okay, minimum hardware जो भी ज़रूरत है आजकल के सवारे सबके पास है, आपके मोबाइल में भी है और क्या बोलते हैं हमारे सिस्टम में भी है, जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट चाहिए, क्योंकि आज हम जो एप्लीकेशन बनाते हैं वो वेब एप्लीकेशन रहती है और उसको जो रैम रहती है मिनिमम, सो उसके बेस से हम वर्क करते हैं, तो अगर उसके बेस से ही हम बनाते हैं, क्योंकि आजकल के मोबाइल में अच्छे रैम आ रही है, जितनी रैम कंप्यूटर में हुआ करती थी पहले, आजकल वही रैम मोबाइल में आ रही है, ओके? सो दैट इज व्हाट कंपेटिबिलिटी. फॉर एग्जांपल दिस वन, टेस्ट द वेब एप्लीकेशन ऑन डिफरेंट ब्राउजर, ठीक है, लाइक दिस वे, दिस इज व्हाट कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन द एडहॉक टेस्टिंग, okay, ad hoc testing. So this is also the most important in the, sometimes we'll ask in the interview, if your interview is going very smoothly, ठीक है, जब भी आपका इंटरव्यू वेरी स्मूथली जाता है ना, तो तब मालूम है क्या, कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि आपको एक आधा ऐसा वर्ड बोलेंगे कि जो आपने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. आप सबसे ज़्यादा किसके ऊपर ध्यान देंगे? स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, रीटेस्टिंग या रिग्रेशन टेस्टिंग. समटाइम्स यू आप ध्यान दे सकते हो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बारे में, एंड टू एंड सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत हमको पता है, ओके? यूजेबिलिटी टेस्टिंग, कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग एंड समथिंग आई नो अबाउट द परफॉर्मेंस टेस्टिंग, बट आई हैव नॉट डिड द परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ऐसे आप बोल सकते हो, बट आई नो what we do in the performance testing. Okay, sometimes the security testing, I written the some test cases in the security testing for securing the username password, okay, for the security purpose. Compatibility testing we did, no problem. How you did the compatibility testing? To checking the different browser and softwares, ठीक है? सिंपल टेक्निक्स और सिंपल आंसर, दैट्स इट. लेकिन ये सब बोलते बोलते, ये सब कुछ होते होते आपको बीच में एक क्वेश्चन पूछ देंगे, व्हाट इज एडॉक, ओके? व्हाट इज एडॉक टेस्टिंग, ऐसे फ्लुएंट चलते रहता है हमारा इंटरव्यू. समटाइम्स ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर और हमारे माइंड में स्पार्क हो जाता है, देन व्हाट इज एडॉक, क्या है क्या है, ओके? सो ये टाइप्स ऐसे आता है, तो ये कैसा रहता है कि जब आपके फोकस ज़्यादा रहता है, जो आप जिसके ऊपर फोकस करते हो वो, और ये जो पार्ट रहते हैं इसके ऊपर आप कम फोकस करते हो, ओके? तो कभी कभी ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन. वाई? बिकॉज अगर आपने जो भी टेस्ट सिनारियो है, वो टेस्ट केसेस है आपने एग्जीक्यूट करी है, और उसके अलावा भी आपको डिफेक्ट मिला है, उसके अलावा, जैसे हम सबसे पहले क्या क्रिएट करते हैं टेस्टिंग में, टेस्टर सबसे पहले क्या क्रिएट करता है? टेस्ट प्लान, ओके? दैट इज अ टेस्ट लीड डेवलप बाय द टेस्ट लीड. टेस्ट लीड क्रिएट करने के बाद टेस्ट सिनारियो लिखते हैं, टेस्ट सिनारियो डॉक्यूमेंटेशन, वंस इट इज साइन अप देन टेस्ट केसेस, okay, once it is sign up then you are going to execute the test cases. While executing the test cases, if you found any defect or any bug, okay, we to check two more times and we are continuously getting the same bug, then we are defect, then we are going to क्या बोलते हैं उसको, ये करते हैं, रेज करते हैं, ओके?
रिपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू द टेस्ट केसेस एंड टेस्ट सिनारियो। बट समटाइम्स ये करते करते, ये टाइप की टेस्टिंग करते करते हमको ऐसा बग मिलता है कि जो बग हमारे प्लान में नहीं है। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जिसके लिए हमने प्लान किया था वो बग टेस्ट करने के लिए, सिनारियो, लॉगिन सिनारियो, रजिस्ट्रेशन सिनारियो, ऐसे कुछ भी, और उस टाइम पे हम ये करते करते हमको दूसरा बग मिल गया। दैट इज व्हाट, जो भी हमने वो दूसरा बग मिला है उसको हमने जो टेस्ट किया, दैट इज नोन एज एड हॉक टेस्टिंग। Okay, so the ad hoc testing is done without a documentation or without planning. Okay, without planning and without documentation. So ad hoc testing is a commonly used term for software testing performed without planning and documentation. Okay, that can be done initial, मतलब later in the part of regression. Continuously regression तो चलते ही रहेंगे, so full regression and रीजनल रिग्रेशन के टाइम पे भी वो कहीं पे भी हो सकती है ad hoc टेस्टिंग। सो व्हेन वी गो फॉर द ad hoc टेस्टिंग, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ad hoc टेस्टिंग क्या है। सो सिंपली यू कैन से, इफ यू वी डोंट हैव द एनी टाइप ऑफ planning and if you don't have the any type of the documentation and we are going to doing the some testing, that is known as ad hoc based testing. ओके, सो ad hoc टेस्टिंग भी हम करते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग करते करते, बिकॉज हम जैसे हमारे जो टेस्ट सिनारियो टेस्ट केसेस है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट दैट वन वी आर गोइंग टू टेस्ट द एप्लीकेशन, बट while to testing that one, if you found a defect but that is not in reported, that is not in comes under the any test cases and any test scenario, वो हमारे प्लानिंग में ही नहीं है आगे, सो हमको डिफेक्ट आ ही गया है, दैट इज व्हाट ad hoc टेस्टिंग। ओके, विदाउट प्लानिंग and without documentation. So software testing, this is the also kind of the testing which can be performed without the planning and documentation. No documentation will be there, no planning will be there. So now how the tests are intended to be run only once unless a defect is discovered. जब भी हमको एक बार डिफेक्ट मिल गया, मतलब एक ही बार हम उसको रन करते हैं, जस्ट वंस। ओके, जस्ट हम चेक करते हैं ऐसे। सो नाउ टेस्टिंग कैरिड आउट informally because there is no documentation. So formally मतलब with documentation, informally. Okay, no formal test preparation takes place, there is no test cases for the ad hoc testing. ठीक है, कोई टेस्ट केस नहीं रहेगा ad hoc टेस्टिंग के लिए। अगर जो टेस्ट केसेस हम लिख के उसको हम टेस्ट कर रहे हैं और जो डिफेक्ट आता है वो प्लानिंग वाला हो गया हमारा एरिया। ठीक है, सो द टेस्ट केसेस नहीं है और टेस्ट सिनारियो भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन इनफॉर्मल है। सो उस टाइम पे हम टेस्टिंग करें, दैट इज ad hoc बेस्ड टेस्टिंग। सो ad hoc टेस्टिंग इज नॉट अ स्ट्रक्चर। Okay, so ad hoc based is not a structure, means which type of testing is ad hoc based, ad hoc testing structurer नहीं, तो it's a functional or non functional? So ad hoc testing is a functional testing or non functional testing, which category में आता, कौन सा category में आता है ये? फंक्शनल में। Yes, yes, so that is what functional, because we are checking the functionality, that's we get the any kind of the defect but we don't have the any documentation and we don't have the any test case, that is informal. Okay, very क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है ये, वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। इफ डू वी डोंट हैव द डॉक्यूमेंटेशन एंड प्लानिंग एंड वी आर टेस्टिंग, दैट इज ad hoc टेस्टिंग, दैट इज कम्स अंडर द फंक्शनल टेस्टिंग। ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द ad hoc टेस्टिंग? बडी टेस्टिंग, पेयर टेस्टिंग एंड मंकी टेस्टिंग। बडी, पेयर एंड मंकी। ठीक है, बडी, पेयर एंड मंकी। मंकी मतलब इधर से उधर जंप जंप मारना कहीं से भी। ठीक है, इधर से उधर कैसे भी एप्लीकेशन में जंप जंप मारो, दैट इज व्हाट मंकी टेस्टिंग। गोरिल्ला टेस्टिंग भी है। ठीक है, मंकी टेस्टिंग, गोरिल्ला। सो ऐसे कुछ है, ऐसे हम इधर जंप करके देख रहे हैं, ऐसे कुछ देख रहे हैं, है ना, इधर से उधर, ऐसे प्रॉपर फ्लो में नहीं चेक कर रहे हम, सब कुछ प्रॉपर फ्लो में नहीं चेक कर रहे, ऐसे इधर से उधर जंप कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली अभी हम यहाँ पे गए तो इधर से चले गए, तो दैट इज व्हाट मंकी टेस्टिंग, बट नो डॉक्यूमेंटेशन, विथ नो डॉक्यूमेंटेशन। सो एक्सप्लेनेशन करते समय ऐसे एक्सप्लेन करना। बडी टेस्टिंग मतलब दोज हैव द बडी विथ आवर फ्रेंड who has the some domain knowledge but we don't have the documentation. Okay, उनके साथ हम करेंगे तो बडी टेस्टिंग। पेयर टेस्टिंग, पेयर टेस्टिंग डेवलपर टेस्टर। ओके, मंकी टेस्टिंग, इधर से उधर क्या बोलते जंप करना। ठीक है, उसको बोलते मंकी टेस्टिंग।
सो द बडी टेस्टिंग, पेयर टेस्टिंग एंड मंकी टेस्टिंग, these आर द टाइप्स ऑफ एडॉक टेस्टिंग. तो ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडॉक टेस्टिंग. तो आपको सबसे पहले एडॉक टेस्टिंग पूछ लिया तो इमीडिएटली आपको टाइप्स ऑफ एडॉक टेस्टिंग तो बताना ही पड़ेगा, या फिर वो पूछेंगे तब आपको बताना पड़ेगा. ठीक है, तो एडॉक टेस्टिंग विथ नो प्लानिंग, नो डॉक्यूमेंटेशन, and there will be no test cases, informal testing. Okay, no formal test case preparation will be there. And there are the three types of the ad hoc testing: buddy testing, pair testing and monkey testing. Buddy मतलब जो अपने friend है, जो having the some any kind of the knowledge or not knowledge, domain knowledge, we can discuss with him. Okay, hey my friend, I got one project, that is what e-commerce project. So today I'm going to do the some exploratory testing. Today I don't have the any documentation, so how we can do the that testing? So your friend will be tell you, you can check that one, the one module, that is what open cart module, user module we can check, or you can check the uh, uh, items are displaying properly. Okay, anything. So that is what the discussing, and then we are going to check that one because you don't have the any documentation. Okay, pair testing means a tester developer, okay, both working, and we are going to check that one. Monkey testing means इधर से उधर monkey jump कर रहा है, वैसे type की testing कर रहा है. This is informal, all are. Okay, that is what ad hoc testing. Now next one is exploratory testing. ठीक है, exploring the application. Okay, exploring the application, just explore, that's it. Okay, so that is also the part of functional testing. Exploratory testing means in an approach software testing where there is a no where there is a simultaneous exploring the application, prepare, design the test execution. Okay, prepare, design the test execution, exploring the application. When the performing this test, there are no exact expected result, the tester decide what be verified. Okay, expected result तो exact नहीं आएगा, लेकिन exploring that applications. Okay, so it is done when the requirements are incompatible or there is a lack of time. Okay, so जैसे हमारे पास it is done when the requirements are incomplete. Okay, so कम time पे हमारे पास requirement incomplete है, we don't have the proper type of the requirement, then we can go for the exploratory testing. So ad hoc testing is the part of exploratory testing. Okay, ad hoc testing is the part of exploratory testing where the test is run once unless the defect is discovered. Okay, so once ये हमको execute करते हैं, so exploratory testing is the same as the ad hoc testing, but ad hoc testing में documentation नहीं रहते, exploratory testing में सब covered रहते हैं. Okay, so जैसे हम exploratory testing कैसे करेंगे कि एक्सप्लोर करेंगे एप्लीकेशन को. सो जैसे मैं यहाँ पे ब्यूटी पे क्लिक करता हूँ तो ब्यूटी का सब दिखने चाहिए मुझे. ठीक है, ब्यूटी रिलेटेड. सो जस्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट वन एंड वी आर टेकिंग वन प्रोडक्ट हियर, देन ऐड टू कार्ट. ओके, इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट, देन गो थ्रू आफ्टर द एडिंग द कार्ट. सो यहाँ पे जाना चाहिए, उसको पेमेंट पे जाना चाहिए यहाँ से. ओके, सो ये पेमेंट पे कुछ है क्या नहीं, क्या पता नहीं, बीटा वर्जन में है ना ये. Okay, so this is a because proceed to card. Okay, then it will go to the proceed to card and payment. Okay, checkout payment, and then we require the login and everything. Place the order. Okay, so before that we required. Okay, then we required signing. Okay, so that we just explore. Okay, we explore this application minimum requirement. Okay, we don't have the max requirement here. Just exploring. It's part of the ad hoc testing. Okay. So the ad hoc testing is ad hoc testing is a part of exploratory testing. So where the test is run once, so unless the defect is discovered. Okay, so explore the application, ad hoc testing, no documentation. Okay, just we are going to explore that one. Then security kind of testing. So now security kind of testing means what? ऐसे तो हम बड़े बड़े सिक्योरिटी टाइप ऑफ टेस्टिंग करते हैं जो एक्सपर्ट रहते हैं टेस्टिंग में, सिक्योरिटी काइंड ऑफ यूनिक्स लिनक्स वगैरह. ठीक है, लेकिन जो बेसिक सिक्योरिटी है वो हम भी कर सकते हैं यूजर नेम पासवर्ड वाले. ओके, सो कुकीज चेक करना. ओके, सिक्योरिटी टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग इन एन एप्लीकेशन और प्रोडक्ट हाउ वेल इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अनऑथराइज एंट्रीज. ओके, अनऑथराइज एंट्रीज से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट सिक्योरिटी टेस्टिंग.
Okay, so username password means it's a protected, and here we are going to inspect that one, so that should not be display here. Okay, page source, and this is encrypted. Okay, then we go to for login. जैसे हम login पे जाते हैं, login में जाने के बाद होम पेज में जाते हैं, होम पेज में जाने के बाद बैक के बटन क्लिक किया तो लॉग आउट नहीं होना चाहिए, और फॉरवर्ड पे क्लिक किया तो लॉग इन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, समटाइम्स यू लॉग इन देन प्रेस द बैक बटन, ओके, सो लॉग आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और फॉरवर्ड करने के बाद और लॉग इन नहीं होना चाहिए। दैट इज कम्स अंडर आल्सो द सिक्योरिटी काइंड ऑफ टेस्टिंग। ओके, सो हाउ इट इज सिक्योर्ड योर एप्लीकेशन, अनऑथराइज यूजर भी एक्सेस कर रहा है क्या। ओके, सो 3 बार अगर आपने पासवर्ड गलत डाला है तो आपको मैसेज आना चाहिए कि योर पासवर्ड इज ब्लॉक, यू आर ब्लॉक फॉर द 24 hours or something. This is kind of the security testing. Okay, so we have to write security kind of test cases also. And while testing also the application, we also take here HTTPS request. Okay, HTTPS, so SSL is secured or not, so you can check here the connection is secured. Okay, here also you have to check security for the open card, and you can check here what connection is secured. Okay, sometimes cookies also there. Okay, that is save the some smallest storage area. So here always check the HTTPS. ठीक है, ये देखो HTTPS अवेलेबल है, यस स्टैंड फॉर सिक्योर प्रोटोकॉल, सो दैट मीन्स द SSL गेट एडेड। और जहाँ पे आपको HTTP यस नहीं दिखता है, सिर्फ HTTP दिखता है, वहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट कभी नहीं करना, ठीक है, बिकॉज दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर्ड। So that it is secured means there is a SSL. Okay, there is a SSL. Can go in our website also, connects of Infotech. So also it gives the secure website. As SSL is also added there. Okay, also secured. Okay, connection is secured. HTTPS. Okay. So always make sure this is secured. Some website they have here antivirus also. Okay, that is kind of the security testing. You know, the high level banking application, they in the server there is an antivirus to protect their to protect from the unauthorized access or data. ओके, तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी यूज़ होते हैं। ओके, उसमें सिक्योरिटी ऑलरेडी सर्वर पे इंस्टॉल रहते हैं सॉफ्टवेयर। ओके, और ये हो गया सर्वर लेवल के, लेकिन जो क्लाइंट साइड में जो सिक्योरिटी चाहिए, क्लाइंट साइड में मतलब हमारे, तो हम क्या करते हैं उसमें एंटीवायरस भी अपडेट करते हैं। तो हमारा लैपटॉप का एंटीवायरस अच्छा अपडेट होना चाहिए, और जो अनसिक्योर्ड कनेक्शन है उसके लिए बोलना चाहिए कि यू आर यूजिंग द अनसिक्योर्ड कनेक्शन, ठीक है। तो ये जो मैक है कभी कभी मुझे बोलता है कि ये वेबसाइट ये नहीं है, अनसिक्योर्ड है, ठीक है। सो सेम थिंग वी आर ऑल्सो टेस्ट दैट वन, ओके, मैन्युअली और ऑटोमेटिकली। So it is used to find out all the potential loopholes, okay, loopholes and weakness of the system. So हम कैसे के all types के security test हम करेंगे कि जो भी loopholes है या weakness है उस system के various type के, तो हम check करेंगे, क्योंकि unauthorized person access नहीं होना चाहिए। जिसकी valid यूज़र नेम है उसी को उसका OTP जाएंगे तो वो एक्सेस करेगा। अगर सेम टाइप का ओटीपी सभी ईमेल आईडी को जा रहा है तो दैट इज आल्सो द प्रॉब्लम। ओके, सो ईमेल वेरीफाई कैसे करेंगे, ओटीपी से। मोबाइल वेरीफाई कैसे करेंगे, ओटीपी से। और पेमेंट के टाइम पे पेमेंट भी वेरिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए कि उसका ही डिडक्शन हुआ है कि नहीं, है क्या नहीं। सो एंड पेमेंट डिडक्शन होने के बाद पेमेंट डिपॉजिट अपने हुआ कि नहीं अपने यहाँ पे। सो एवरीथिंग, सो यहाँ पे हम जो भी एप्लीकेशन है उसके पूरे वीकनेस पॉइंट है, हम उसको चेक करेंगे कि कौन कैसा एक्सेस कर सकता है। जैसे इसको हम बोल देंगे कि कुछ गेटवे भी यूज़ करते हैं। जैसे हमारे टाइम पे पावर स्क्रैप नाम का, सॉरी, हमारे टाइम पे तो फेसबुक तो 2008 में आया था, तो गूगल का एक प्रोडक्ट था सोशल नेटवर्किंग का, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्कुट। आपने नाम सुना क्या ऑर्कुट, क्या कभी ऑर्कुट का नाम सुना है क्या। नहीं। ओके, तो सबसे पहले जो पहले कैसा कि याहू बहुत माहौल करता था, और उस टाइम पे गूगल आया, गूगल ने एक प्रोडक्ट निकाला ऑर्कुट।
ऑर्कुट जो है वो सोशल नेटवर्किंग है, फिर वही कॉन्सेप्ट मार्क जुकरबर्ग ने यूज़ किया और उसने फेसबुक बनाया 2008 को। ठीक है, तो ऑर्कुट में हमारे कॉलेज में कैसा कि हम सोशल नेटवर्किंग बैन रहती है कि ऑर्कुट ओपन नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे इंटरनेट भी स्लो हुआ करते थे, तो ऑर्कुट ओपन नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करते थे। ओके, वी यूज द प्रॉक्सी सर्वर टू एक्सेस द सेम ऑर्कुट, ओके, बट विथ डिफरेंट सर्वर्स, दैट इज नोन एज द प्रॉक्सी सर्वर। ओके, क्योंकि हम arco.com ओपन किए तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमारा सोनिक वॉल या फिर जो भी हमने सर्वर पे डाला है हमारे सॉफ्टवेयर, तो उन्हें प्रोटेक्ट करके रख दिया है। ठीक है, वो काइंड ऑफ वेबसाइट इज नॉट गोइंग टू बी ओपन इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। ओके, उसमें हम ओपन नहीं कर सकते वेबसाइट। तो हम क्या करते थे, पावर स्क्रैप नाम की वेबसाइट थी पावर स्क्रैप, ओके, उसके थ्रू ये ऑर्कुट हम एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, सो देयर इज अ प्रॉक्सी सर्वर, सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो दैट इज आल्सो द सिक्योरिटी काइंड ऑफ द टेस्टिंग वी हैव टू डू। ठीक है, ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे गेटवे से वो एक्सेस हो रहा है। ठीक है, सो ऑर्कुट वाज अ सोशल नेटवर्किंग ओन बाय द ऑपरेटेड बाय गूगल। ओके, सो ये 2004 में आया था और वर्क ने किया, मार्क जुकरबर्ग ने वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया और बना दिया। ठीक है, ये है फाउंडर्स ऑर्कुट के, गूगल। सो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ऑर्कुट, लेकिन ऑर्कुट में, फेसबुक में और ऑर्कुट में डिफरेंस ये था कि ऑर्कुट में एक बार हमने किसी को मैसेज कर दिया तो 2-3 दिन के बाद वो देखते हैं, 3-4 दिन के बाद वो रिप्लाई देते थे। ऑर्कुट में कैसे इंस्टेंट डाल दे, इंस्टेंट मिल जाता जो भी हमने पोस्ट किए है। ओके, सो एक टाइम पे ऐसा था गूगल की, गूगल ने बोला था याहू को कि मुझे खरीद ले, याहू बोला मैं नहीं खरीदता। ठीक है, तो अभी गूगल याहू के भी आगे निकल गया, क्योंकि उन्होंने छोटे से जो सर्जन ब्रिन एंड लैरी पेज है, दीज आर द टू फाउंडर ऑफ द गूगल, तो उन्होंने सिर्फ 10 लोगों के बीच से ऑफिस चालू किया था गूगल का। और एक टाइम ऐसा आया था कि उसको हम बेच देंगे भाई, गूगल को ऐसा टाइम आ गया था, लेकिन जैसे जीमेल और ये चालू कर दिया और सर्च इंजन में इतना ऑप्टिमाइजेशन कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे रेडिट और याहू रहते थे, वो क्या करते थे कि बहुत सारे एड्स देते थे जब भी हम सर्च इंजन यूज़ करते थे। गूगल एड्स देना बंद कर दिया था, गूगल एड्स नहीं देता था, उसने कस्टमर केयर जीमेल बनाया, सब कुछ बनाया, स्पेस दिया, बहुत वर्क कर दिया और नए प्रोडक्ट के साथ वापस आया यूट्यूब और ये, तो फिर याहू पूरा चला गया फिर, है क्या नहीं? तो वैसी स्टोरी रहती है। याहू अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट जितना गूगल का वर्क है उतना याहू का नहीं है अभी, जो चाहिए जिसके हिसाब से, तो अपडेशन इज वर्क है। और उसका सबसे बेस्ट जो बेनिफिट था गूगल का होता है एंड्रॉयड का। ठीक है, जो जैसे जब से उसने एंड्रॉयड एक्सेप्ट कर लिया, तब से और पूरा माहौल हो गया फिर गूगल का। Okay, so this is what just a story about that one. So we need to do what security kind of testing. So कोई गेटवे प्रॉक्सी सर्वर यूज करके उस एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं होना चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई द सिक्योरिटी टीम, हाई लेवल सिक्योरिटी टीम, मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, जो भी हाई लेवल के लोग रहते हैं वो वर्क करते हैं इस सब चीज़ों में। तो वो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी रिलेटेड वो करते हैं और बेसिक सिक्योरिटी वी आर गोइंग टू चेक। ओके, so through this testing, we can prevent a loss, thief of highly sensitive information from the outsider. So जैसे हम कुछ पेमेंट करते हैं तो हम सबसे पहले हमारे इंफॉर्मेशन वहाँ पे पुट अप करते हैं। तो जो थीफ रहते हैं, तो हम जो भी हम पेमेंट गेटवे ऐड करते हैं, यूपीआई डालते हैं, तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आना चाहिए कि उसको, जैसे आप डाल रहे हो यूपीआई आईडी या समथिंग ओटीपीज, तो कोई भी पर्सन जो सिक्योरिटी अटैक वाला है तो उसको मिलना चाहिए, है ना? सो दैट विल बी द सिक्योर्ड। जैसे अभी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो पेमेंट का, और क्या पता कोई को, किसी लोगों को आपको वो जो हैकर है उसको मिल रहा है जो आप इनपुट दे रहे हो, यूपीआई एंड ओटीपी एंड ऑल दोस थिंग। ओके, दैट शुड नॉट बी गिव, मतलब वो मिलना नहीं चाहिए थिप को, तो वो जाना नहीं चाहिए और वो हैक नहीं करने चाहिए। ओके, दैट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट। सो द डेटा थिप मतलब डेटा चोरना, डेटा ये होना वो चलते रहता है हमेशा। तो दैट इज व्हाट वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सो वैसे इसलिए एक्ट है, जैसे अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम में जो एक्ट है, HIPAA। ओके, सो गवर्नमेंट ने एक्ट लाना चाहिए, और हमारे इंडिया में डेटा सिक्योरिटी का एक्ट नहीं है। जब भी हमारे गवर्नमेंट ने डेटा सिक्योरिटी का एक्ट लाया, तो फिर हमारा पूरा डेटा सिक्योर हो जाएगा। जो भी हमको ऐसे कॉल आते हैं कि आपको इतना लॉटरी लगा, उतना लॉटरी लगा, ये हो गया बैंक में, ये चाहिए क्या, वो चाहिए क्या, लोन चाहिए क्या, वो बंद हो जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये जो पॉलिटिक्स में है तो सबसे ज़्यादा डेटा डेटा उसका बिल भी डाला था डेटा सिक्योरिटी के कारण, लेकिन वो रिजेक्ट किया पार्लियामेंट में। ओके, सो दैट इज अनदर इशू। सो हिप्पा इज देयर, HIPAA, हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। सो ये यूएसए में एक्ट है। सो जैसे हमारे पास पेशेंट की इंफॉर्मेशन रहती है, अगर किसी ने भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन लीक की तो उसके ऊपर आप चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं, उनको फाइन है, सब कुछ है। ठीक है, सो ये से हेल्थ इंफॉर्मेशन, अगर किसी ने भी लीक की इंफॉर्मेशन पेशेंट की, नहीं नहीं, लॉन्ग फॉर्म क्या बताया? हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ओके, अगर आप हेल्थ केयर के डोमेन को बिलोंग करते हो, प्रोजेक्ट दिखाना है आपको हेल्थ केयर डोमेन को का, यूएसए बेस्ड का, तो ये हिप्पा का बेसिक नॉलेज होना पता है। दैट इज वन एक्ट। ओके, यूएस गवर्नमेंट का जो भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन लीक करेगा, सो उसके अकॉर्डिंग टू अगेंस्ट द लॉ, जैसे पेयर है, पेशेंट है, ओके, इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। तो जितने भी लोग कंपनी में वर्क कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर के साइड में, इंश्योरेंस क्लेम के साइड में, तो इनको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है कि इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, सिक्योर। ओके, दैट इज ऑलवेज सिक्योर। सो दैट इज व्हाट सिक्योरिटी पर्पस। सो डेटा आल्सो बी सिक्योर, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक नहीं होना किसी और लोगों को, दैट इज प्रिवेंटिंग। सो हम क्या करेंगे, उसको जब भी डेटा स्टोर होगा हमारे पास, वो इनक्रिप्ट होना चाहिए। ओके, इनक्रिप्टेड फॉर्म, सो दे यूज द सम कोड्स देयर। ओके, तो पर इंटरनल प्रोसेस है, वो करते हैं वैसा। कितना हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को, उतना हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे ऑनलाइन पेमेंट में जितने भी हम इनपुट देते हैं हमारे डेबिट कार्ड के डिटेल्स या इसके, तो वो कैसा हाईली सिक्योर्ड हम डेटाबेस में स्टोर होते हैं, हाईली सिक्योर्ड फॉर्म में। सो दैट इज व्हाट हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो सिक्योर रहना चाहिए। सो कि कोई चेक कर रहा है, कोई उसको मिल रहा है ना, लीकेज ऑफ डेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस सिक्योरिटी टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। then it ensure that the system and application used by the organization are secure, not exposed to any type of attacks। so आपको पता है कि बहुत सारे अटैक हो सकते हैं इसके ऊपर, कौन से, ट्रोजन, ट्रोजन और अटैक्स, हैकर के कुछ बहुत सारे ऐसे टाइप्स के अटैक्स है, वायरसेस अटैक्स है। ओके, उस सारे से बचना होना चाहिए एप्लीकेशन, क्योंकि अगर मैंने कुछ एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन बना के दिया है और हमको टेस्ट करने के लिए लगा, हमने टेस्ट किया है, तो सिक्योरिटी टेस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है कि वो हम बेसिक टेस्टिंग करते हैं हमारे लोकल क्यूए एनवायरनमेंट में, फिर वो सर्वर में भी टेस्टिंग करते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन टेस्टिंग डिफरेंट एनवायरनमेंट में हम चेक करके देखेंगे अगर वेरियस टाइम पे हम ये डेटा सिक्योर है कि नहीं। जैसे मैं उसको हैक करने जा रहा हूँ तो इजीली हैक होता है कि नहीं, है ना, तो अगर इजीली हैक होता है तो और इसके ऊपर वर्क करेंगे। इजीली हैक नहीं होना चाहिए हर चीज़, इसीलिए सर्वर पे क्या यूज़ करते हैं, मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है सर्वर के लिए, मोस्ट सिक्योर्ड। इसलिए सर्वर में विंडोज सर्वर यूज़ नहीं करते, कौन सा सर्वर यूज़ करते हैं, लिनक्स, दैट इज मोस्ट सिक्योर। ओके, क्लाइंट आप जो है वो, क्लाइंट में आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो, दैट इज डजंट मैटर, बिकॉज यू आर जस्ट एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम द सर्वर एप्लीकेशन। ओके, जैसे आपके पास अगर बैंक का एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में, सो यू आर एक्सेसिंग द डेटा एंड रिट्रीविंग फ्रॉम द सर्वर, बट in your mobile you are using the Android or your computer, you are using the Windows. Okay, but in the server, bank server, they use always Unix and Linux servers, it's the most secured. Okay, it's not going to be hack easily। ठीक है, तो ये सर्वर यूज करते हैं लिनक्स, जो आपके सर्वर में जो एप्लीकेशन डिप्लॉय किया है वो लिनक्स सर्वर में डिप्लॉय करते हैं। ओके, मोस्टली सिक्योर रहती है। ओके, सो ये सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो वो सिक्योर होनी चाहिए, और वहाँ पे प्रिवेंट होनी चाहिए कोई भी टाइप के अटैक से। ठीक है, सो दैट इज व्हाट सिक्योरिटी काइंड ऑफ टेस्टिंग। इन द सिक्योरिटी टेस्टिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कि we are going to see that we are protecting from the any unauthorized entries। okay, unauthorized, unauthorized person login हो रहा है क्या, ओके, वो चेक करना, अनऑथराइज पर्सन क्लेम कर रहा है क्या, अनऑथराइज पर्सन बैंक परफॉर्म होके लॉगिन होके बैंक का ट्रांजेक्शन कर रहा है क्या। ओके, सो वी आर गोइंग टू चेक वीकनेस ऑफ द सिस्टम। ओके, लूप होल्स एंड वीकनेस। ठीक है, तो ये इन चेक करना,
ओके कुछ अटैक्स हो रहे हैं क्या उस पे, ये हम सिक्योरिटी टेस्टिंग, तो हम बेसिक सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं कि इनवैलिड डेटा, इन नेगेटिव डेटा हम ऐसे कुछ देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अगर वो अनवैलिड यूज़र, इनवैलिड यूज़र अगर लॉगिन करता है तो हम बोलेंगे सिक्योरिटी टेस्टिंग फेल हो गई हमारे, ठीक है। तो ऑथराइज पर्सन ही लॉगिन होना चाहिए, लाइक दिस वे, ठीक है। दिस इज अबाउट व्हाट सिक्योरिटी काइंड ऑफ द टेस्टिंग। एंड आल्सो द सिक्योरिटी टेस्टिंग किसके अंडर में आती है? नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आती है कि नहीं? हाँ, सिस्टम टेस्टिंग। So this is what end-to-end testing. System testing is the end-to-end testing where we are going to test the entire application. Compatibility testing, usability testing, performance testing, security testing and compatibility testing. Okay, ये सब हम चेक करते हैं, ठीक है। compatibility, usability, performance, security, वो सब सिस्टम टेस्टिंग है। मतलब हमारे जो सिस्टम या सर्वर पे डाटा है वो प्रॉपर है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, तो हम डिप्लॉय करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ रिकवरी टेस्टिंग। सो द रिकवरी टेस्टिंग मीन्स व्हाट, कि जैसे हम करें कुछ सॉफ्टवेयर फेलियर हो गया, हार्डवेयर फेलियर हो गया, तो उसको हमारा जो डेटा है वो रिकवर कर सकते हैं कि नहीं प्रॉपरली, ठीक है। सो देर इज द ऑप्शन ऑफ द रिकवरी। So after clicking on that or after something doing the any writing the any command, so all the data recovering properly or not, that is kind of the recovery testing. So the recovery testing is what a process of testing the application in order to check how well the application recovers from the any type of crash or hardware failure. आपकी applications fail हो गई है, crash हो गई है, unable to open है, so but we have the something data also there, okay, so whether it is recover or not, okay, so how यू आर गोइंग टू रिकवर दैट वन, मतलब हम रिकवर पे क्लिक कर रहे तो रिकवर हो रहा है कि नहीं पूरा डेटा, या इनसफिशिएंट डेटा रिकवर हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज नोन एज रिकवरी टेस्टिंग, ठीक है। तो समटाइम्स हार्डवेयर फेलियर्स में भी हो सकता है, तो हम रिकवरी करना चाहते हैं, ओके। सो रिकवरी करते समय पूरा डेटा मिल रहा है कि लैक ऑफ डेटा, मतलब छोटा थोड़ा डेटा मिल रहा है। सो दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज रिकवरी टेस्टिंग। अब कैसे कि सब डेटा जो है वो सर्वर में रहता है, रिकवरी टेस्टिंग कैसे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन में वगैरह कर सकते हैं, बट हियर हैविंग द वेब एप्लीकेशन। सो रिकवरी टेस्टिंग हम कैसे करें कि मान लीजिए कि अगर आपने लॉगिन किया फेसबुक पे, 5 साल हो गए आपने लॉगिन ही नहीं किया, ठीक है, 5 साल हो गए आपने लॉगिन ही नहीं किया, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप जैसे भी लॉगिन करेंगे वैलिड यूजर नेम पासवर्ड, तो आपको क्या बोलेंगे वो कि पासवर्ड यूर चेंज एंड समथिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन दे विल आस्क, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आस्क होने के बाद फिर आप उसमें देखेंगे कि मेरा जो डेटा है 5 साल पुराना वाला, जो मैंने फोटो डाला था, आप कोई पोस्ट डाली थी, वो है या नहीं है, दैट इज रिकवरी, ओके। 5 साल के बाद अगर आपने यूज़ नहीं किया और चला गया, तो हम बोलेंगे कि रिकवरी टेस्टिंग जो है फेल हो गई है। अगर है वहाँ पे तो हम बोलेंगे रिकवरी टेस्टिंग हो गई, मतलब वो रिकवर हो गया है, ओके, एंड न्यू डेटा यू कैन ऐड नाउ, ठीक है। सो इन टाइप ऑफ, सो कुछ भी हो सकता है, क्रैश हो गई एप्लीकेशन, हार्डवेयर फेल हो सकता है, क्रैश हो सकती है एप्लीकेशन, क्रैश फेलियर हो सकता है, तो हमको रिकवरी करते समय डेटा पूरा मिला है कि नहीं, दैट इज अ काइंड ऑफ टेस्टिंग। अब वेब एप्लीकेशन उतना कुछ ज़्यादा नहीं होता है, ओके। सो नाउ जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन रहती है स्टैंड अलोन सिस्टम, तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है, कभी कभी क्या है कि कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, बंद हो जाता है, लेकिन हमारा स्टैंड अलोन सिस्टम है तो उसमें हमारा डेटा है, तो हार्डवेयर फेलियर हो गया, तो फिर हम लैपटॉप सुधराने जाते हैं, सब कुछ होने के बाद फिर हम चेक करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन बराबर है कि नहीं, वर्क कर रही कि नहीं, ठीक है। जो बैकअप डेटा लिया है दैट इज रिकवरी, वो प्रॉपर है कि नहीं, ओके। सो इट इज टेस्टेड फॉर द सिस्टम एबिलिटी टू रिकवर द वेरिंग द डिग्रीज ऑफ फेलियर, ओके, वेरिंग द डिग्रीज ऑफ द फेलियर। सो जहाँ जहाँ फेलियर होता है तो वहाँ वहाँ तक हमारा डेटा रिकवर होता है कि नहीं, जहाँ जहाँ फेलियर होता है वहाँ तक हमारा डेटा रिकवर होता है कि नहीं, दैट इज चेकिंग, इट्स द रिकवरी टेस्टिंग, दैट इज नॉट आस्क, ओके। रिकवरी टेस्टिंग तो अभी तक तो इंटरव्यू में जितने भी मेरे कांटेक्ट वाले हैं या मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने जितनी इंटरव्यू दी है, उन्होंने कभी तक मुझे ऐसा बोला नहीं कि सर हमारे को रिकवरी टेस्टिंग नाम का क्वेश्चन पूछा करके, ओके। तो जस्ट यू नो, ओके, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन ये भी नहीं पूछे, ठीक है। ये जो है वो डेस्कटॉप रिलेटेड आते हैं, इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन। सो इंस्टॉलेशन टेस्टिंग मीन्स whether this application is installing properly in your system or not, okay, with giving the all this requirement, that is what software and hardware,
इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं, आफ्टर दैट अनइंस्टॉल प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। ओके, जैसे हम कोई भी एक सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। ओके, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में इंस्टॉल मतलब दैट इज डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वी आर गोइंग टू चेक इंस्टॉलेशन। सो इंस्टॉलेशन के लिए क्या चाहिए, exe फाइल चाहिए। ठीक है, exe फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, सी हियर दिस इज व्हाट exe फाइल। ठीक है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इंस्टॉलर है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इंस्टॉलेशन इज गोइंग बिगिन स्टार्ट। ओके, इट इज गोइंग टू बिगिन। सो प्रिपेयरिंग द इंस्टॉलेशन, राइट। इंस्टॉलर तो समटाइम्स अगर वो इंस्टॉलेशन करते करते मेरा इंस्टॉल तो हो गया लेकिन करप्ट हो गया, सो वी आर गोइंग टू चेक हियर द इंस्टॉलेशन। जैसे डबल क्लिक के बिल्ड के ऊपर जो भी exe फाइल है, ये डबल क्लिक करने के बाद नेक्स्ट 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 फिनिश, ये सब पेजेस आते हैं कि नहीं, ये चेक करना बोले तो इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। ओके, कोई इंस्टॉल किया है कि नहीं आपने सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में, कुछ तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा खुद। ओके, जावा किया होगा, पाइथन किया होगा, एनी काइंड ऑफ द सॉफ्टवेयर यू हैव इंस्टॉल इन योर सिस्टम। जैसे हमको ऐप में अपने मोबाइल में कुछ तो ऐप इंस्टॉल किया होगा, जो भी रिक्वायरमेंट लगे होंगे आपको, वो ऐप आपने डाउनलोड किया होगा, इंस्टॉल किया है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल गूगल मीट। हाँ, गूगल मीट इज द एप्लीकेशन, ऐप आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करते समय आपको पूछा नेक्स्ट 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 एंड वी आर अलाउिंग टू एक्सेस योर डेटा, तो यस, है ना। So that is what installation, and during the installation if you get any fail, so you can say the installation is get failed. So installation करते समय properly with all features that should be installed. Google Meet आपने इंस्टॉल किया, लेकिन जब आप उसमें ओपन करते हो और ज्वाइन डालते हो, ज्वाइन के साथ अपने कुछ 6-9 कीवर्ड्स वहाँ पे डालते हो और आप ज्वाइन ही नहीं हो रहे हो और करप्ट दिखा रहा है, so that means half installation is done, half is not done or something crashing there। ओके, कुछ तो हो गया वहाँ पे। तो ये सब डेस्कटॉप एप्लीकेशन में होते थे पहले ऐसे इश्यूज। एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय इंस्टॉल तो हो जाता था लेकिन वो वर्क करते समय वर्क ही नहीं होता था, दैट इज मीन्स इंस्टॉलेशन इज नॉट डन प्रॉपरली। सो दिस इज व्हाट, while doing the installation you are going to check key installation process, this is known as the installation testing. Open the exe file should be executable first. When we go for the double click on the executable file, it should be open the one interface, it will show this one, the next button will be visible there, then click on the next button, then there will be some stages, and after that click on the finish button. Okay, so then what is the expectation, our the any icon or any shortcut will be created in the desktop, or it is क्या बोलते permanently installed to the computer and it will shows in the program files। कोई भी सॉफ्टवेयर अभी हम इंस्टॉल करते हो तो प्रोग्राम फाइल्स में दिखना चाहिए, बराबर है। दिस इज व्हाट, दिस इज द इंस्टॉलेशन टेस्टिंग, इसी को बोलते हैं इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हो तो कहाँ पे जाता है वो, प्रोग्राम फाइल्स में, सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में। वेदर योर सिस्टम इज अ 64 बिट, देन यू कैन चेक हियर द प्रोग्राम फाइल्स ओनली। अगर वो सॉफ्टवेयर 32 बिट का है या 86 बिट का है तो ये यहाँ पे दिखेगा 86 में। ठीक है, सो प्रोग्राम फाइल्स यू कैन चेक। अर्लियर आई एम इंस्टॉल द अपाची टॉमकैट फाउंडेशन, ओके, गिट आई हैव इंस्टॉल, राइट। So these are the softwares I have installed. Okay, you can check in the Java, there is a 1.8 version in the Java, that is in the 64 bit, and here the program files of 86 bit. I have the Java, I क्या Java, हाँ, here is the Java, but it is the old version, that is what 1.6 and 1.7 version. This is belongs to the 32 bit and 86 bit, and this is belong to 64 bit because my computer is the 60 bit, so the all the 64 bits के सॉफ्टवेयर हमारे प्रोग्राम फाइल्स में रहेंगे। ओके, प्रोग्राम फाइल्स में 64 बिट का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे रहेंगे, और जो भी सॉफ्टवेयर है वो 32 बिट और 32 और 86 बिट का है तो यहाँ पे रहेगा वो। ओके, हाउ टू चेक कंपेटिबिलिटी, यू कैन चेक द कंपेटिबिलिटी, राइट क्लिक ऑन द माई कंप्यूटर एंड यू कैन चेक कितने बिट का है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट है, कौन सा है। ओके, सो द अनइंस्टॉलेशन प्रोसेस आल्सो, तो जैसे हमने कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो मुझे उसको अनइंस्टॉल करना है, तो वेयर वी गो,
we need to go program files, or you can say sorry control panel. ओके, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हमारे कंप्यूटर में वो चेक करना है तो हम कहाँ से चेक करते हैं? कंट्रोल पैनल से. ओके, चेक द कंट्रोल पैनल. सो हियर ऑल द सॉफ्टवेयर्स आर इंस्टॉल्ड. We can check here. Okay, program and features. These are all the executable files, means my all this desktop software means standalone system that is installed in our local machine. Okay, so these all the softwares I have installed here. Okay, this is what successfully installed. Okay, control panel में रहता है. So जैसे अगर हमको किसी को uninstall करना है, so just double click on that one and uninstall, click on the uninstall, then it will be get uninstall. So जैसे हम uninstall करते हैं तो सारे उसके related files delete होनी चाहिए और वहाँ पे आइकॉन यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए. ओके, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर दिखना नहीं चाहिए. तो उस टाइप की टेस्टिंग को बोलते हैं अनइंस्टॉलेशन टेस्टिंग. ठीक है, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग में जब हम बिल्ड पे क्लिक करते हैं एग्जीक्यूटिव फाइल पे, नेक्स्ट 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 में फिनिश होना चाहिए, पूरे फीचर्स ऐड होने चाहिए, वर्किंग रहना चाहिए, आइकॉन बनना चाहिए, सब कुछ फीचर फॉलो होने चाहिए और प्रोग्राम फाइल में जाना चाहिए. ठीक है, उसी को हम डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉल भी कर रहे तो पूरे फीचर्स फाइल निकलने चाहिए और पूरे कैशे वगैरह सब वहाँ से रिमूव होना चाहिए और सक्सेसफुली अनइंस्टॉल होना चाहिए. इसकी टाइप ऑफ टेस्टिंग बोलते हैं इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड अनइंस्टॉलेशन टेस्टिंग. ओके, so the installation testing is defined as a test which occur the outside the development environment. Okay, that is what outside the development environment. डेवलपर ने आपको एक सी फाइल दे दी है, दिस इज इन द क्यू एनवायरनमेंट, नाउ यू कैन इंस्टॉल इन योर सिस्टम एंड अदर सिस्टम बट नॉट इन द डेवलपर सिस्टम. क्योंकि वो वहाँ से तो कोड लिख के भेजा है तो उसके सिस्टम में इंस्टॉल करके देखेंगे क्या हम? है क्या नहीं? तो उनके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करेंगे, दूसरे सिस्टम में करेंगे. सो दिस टेस्ट इज परफॉर्म वेन एवर अ फुल पार्शियल और अपग्रेड्स ऑफ द एप्लीकेशन और इंस्टॉल और अनइंस्टॉल. ठीक है, सर जैसे फुल है या पार्सल है, जो भी अपग्रेडेड एप्लीकेशन है उनको इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन करना है तो चेक करेंगे. और जनरली दिस विल दे टेक केयर इन द डेव एप्स इंजीनियर. अभी हम कैसे कि डेस्कटॉप पे वर्क नहीं कर रहे हैं और अभी ज़माना जो है वेब एप्लीकेशन का है. सो इट विल टेक केयर ऑफ द डेव एप्स इंजीनियर. ठीक है, डेव एप्स इंजीनियर वो हम जो भी डेवलपर बिल्ड करते हैं, कोड लिखते हैं, देन डिप्लॉय करते हैं, टेस्ट करते हैं, देन डिप्लॉय करते हैं, देन वही प्रोसेस को सब फॉलो करते हैं और डेवऑप्स इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ओके, कंटिन्यू प्रोसेस चली रहती है, बिल्ड रहती है, बिल्ड डेवलप टेस्ट डिप्लॉय एंड रिलीज. ओके, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है तो ये पूरे डेवऑप्स इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन अगर हमको डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो चेक करना है तो हम टेस्ट कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन ऑन इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन. ओके, so it is also referred to implementation of the testing and software development. Okay, so this is about what installation and uninstallation, recovery we seen, security kind of we seen, exploratory, ad hoc testing, compatibility. Okay, so today we seen such a type of the testings. So if you have any doubts, so you can ask me now. कुछ डाउट्स है अभी इसमें? रिकवरी इंस्टॉलेशन ज़्यादा पूछा नहीं जाता क्वेश्चन, अभी तक तो किसी को पूछा नहीं है. ओके, yes, any doubt, any question? So in the next class, we are going to see the next testing as well as the SDLC models. What are the SDLC models? So we are just taking the overview of the all the kind of the testing. Okay, what are the testings are available and how we are going to do the